So Newton's first law of motion we have seen, right? So first law of motion क्या था? First law of motion gives us qualitative idea of force कि force करता क्या है? It changes velocity, either magnitude or direction. Inertia भी define किया था हमने, ठीक है? फिर second law of motion, Newton's second law of motion quantitatively defines force. What was that? Average force is change in momentum per unit time. Instantaneous force is rate of change of momentum with respect to time, and a reduction of it, that is ma. ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट से फॉर्मूले हैं. इनके ऊपर 2-4 क्वेश्चंस करेंगे हम लोग न्यूमेरिकल. फिर उसके बाद थर्ड लॉ पढ़ के टाइप्स पढ़ेंगे. तो लेट मी राइट अ क्वेश्चन. An object is acted upon by force of 150 Newton per 3 seconds. And find change in momentum. An object is subjected to a force of 150 newtons for 3 seconds. Find change in momentum. बोलो, एकदम मोरल सा क्वेश्चन है. An object is acted upon by sorry Sir, 450 kg. 450 kg meter per second, correct. So answer is change in momentum P2 minus P1 is 450 kg meter per second. Second question. If mass of object be 20 kg, initial velocity was 15 meter per second. Assuming final force was acting along direction of motion, find final velocity. Find final velocity. Good. If mass of object was 20 kg, initial velocity is 15 meter per second. Assuming force was acting along direction of motion, find final velocity. 37.5 meter per second. 37.5 तो नहीं लग रहा. हाँ बराबर 37.5 आ रहा है क्या? 15 into 20 कितना? 300 था. 300 प्लस 750. हाँ करेक्ट. तो P2 minus P1 upon T2 minus T1 है. तो ये हमने देख लिया. P2 minus P1 मतलब फाइनल मोमेंटम is m into V2, मास है 20, डायरेक्शन सेम ही था, कोई टेंशन नहीं. 20 into 15 is equal to 450. So 20 V2 is equal to 300 plus 750. V2 is equal to 37.5 meters. क्लियर है?
Hello. Yes, sir. Now, if I ask you to calculate acceleration in above case, तो acceleration कितना आएगा? Calculate acceleration in above case. Sir, 22.5. 7.5 meter per second square. Acceleration is force by mass. Force था 150, mass था 27.5 meter per second. बहुत सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है इस चैप्टर में. नेक्स्ट क्वेश्चन. Given f equals to minus 2i plus 3j plus on an object mass 2 kg. 2 kg. इनिशियल वेलोसिटी इज 10i plus 3j मीटर पर सेकेंड. फोर्स लग रहा है -2i plus 3j न्यूटन एंड 2 kg is the mass of the object. You have to find the velocity at the end of 5 seconds. 5 seconds की क्या 6 seconds कर देता हूँ, डेसिमल नहीं आएगा, अच्छा लगेगा. डू इट. 2 मिनट देता हूँ, 2 मिनट में सोच के सॉल्व करके आंसर बताओ. Answer. हेलो, आया आंसर किसी को? 21.25 मीटर पर सेकंड. सॉरी कितना? 21.25 मीटर पर सेकंड. अच्छा, वेक्टर फॉर्म में नहीं बताओगे? वेक्टर फॉर्म में बताने बोला सर. चलो ठीक है, देखते हैं कैसे निकाला तुमने इसे. सर F इक्वल टू ma वाला फॉर्मूले से एक्सेलरेशन की बताओ. देंगे F equals to माइनस ma. अपॉन टी. तो एक्सेलरेशन इज F by m. ठीक, यस सर. तो इतना आ गया. मैंने मैग्नीट्यूड कर दिया था यहाँ पे, इसलिए क्या कर वेक्टर दिया था? फॉर्म में नहीं आ पाया. मैंने मैग्नीट्यूड ले लिया था तो वेक्टर फॉर्म में नहीं आ पाया सर, इसलिए. हाँ, इसीलिए मैंने क्वेश्चन दिया वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि आपको आंसर जो आया होगा गलत आया होगा. लेट मी शो यू कैसे. F कितना आया? -2i plus 3j upon m. m is 2. So -i plus 1.5j. ये है acceleration. Final velocity is initial velocity plus acceleration into time. V is equal to u plus at. Initial velocity 10i plus 3j. Acceleration पता नहीं मैंने, minus I plus 1.5j into 6.
So 10i plus 3j minus 6i plus 9j. ये हो गया 4i plus 12j. तो ये आगे वेलोसिटी. अगर कोई मैग्नीट्यूड पूछता है तो रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, विच इज नियरली 12.2 के आसपास आएगा. रूट 152 आ रहा है. तो आपने क्या किया, आपने मैग्नीट्यूड लिया, फोर्स का मैग्नीट्यूड आपने लिया 4 + 9 √13. ठीक है, ओके. एक्सेलरेशन आपने √13/2 ले लिया. यहां तक सब ठीक था, कोई दिक्कत नहीं. चक्कर क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी किसी और डायरेक्शन में है. u जो है 10√109 है. डायरेक्शन कोई और है, ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, फोर्स इधर लग रहा है. तो ये आप सीधा सीधा स्केलर एडिशन नहीं कर सकते. इसके प्रीवियस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, मैंने एक स्टेटमेंट लिखा था, assuming that force acts in the direction of motion. फोर्स आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन में ही लग रहा था प्रीवियस क्वेश्चन में. इस बार मैंने दो अलग अलग फोर्सेस दिए. आई बस में, सॉरी, अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स दिया. फोर्स अलग जा रहा है, वेलोसिटी अलग जा रहा है. हेलो, यस सर. तो पहला मैसेज जो आपको जाता है, आपको केयरफुल रहने की जरूरत है. डायरेक्शन भी मैटर करता है यहाँ पे. ये जो एक्सप्रेशन है F = ma, दिस इज इन वेक्टर फॉर्म. तो क्या आपको कंफ्यूज करने के लिए स्केलर फॉर्म में दिया हो? हाँ, वो गलती है. अच्छी बुक्स देखोगे तो क्लियरली F वेक्टर = m × a वेक्टर ही लिखा रहेगा. बाद में एक्सप्लेन करते हैं. इफ द फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन आर सेम, तो यू कैन assume सेम मतलब स्केलर रिलेशन. अदरवाइज दिस इज इन वेक्टर फॉर्म. तो अब क्या करना है आपको, जैसे स्टेटमेंट लिखूं मैं, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखना है आपको. ये ऑब्जेक्ट है, ठीक, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा है. नीचे एक सरफेस है, वो इधर नहीं जा सकता. तो ये ऑब्जेक्ट इधर नहीं जा सकता. इधर नहीं जा सकता तो F = ma आप नहीं लगा सकते. F = ma में तब लगाता इस पूरे बॉडी पे जब इधर पे सरफेस नहीं होता, स्पेस होता. यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट था, एक फोर्स इधर लग रहा, तो F = ma सीधा लगाना है. यहाँ पे नहीं लगाना है. यहाँ पे मोशन सिर्फ इस डायरेक्शन में हो रहा है. तो मुझे क्या करना होता है, इस फोर्स का कंपोनेंट निकालना होता है, एक अलोंग द सरफेस और एक परपेंडिकुलर टू द सरफेस. तो ये जो फोर्स है, समझो F, राइट. तो इसका एक कंपोनेंट इधर लगेगा. इफ दिस एंगल इज थीटा, तो इधर लगेगा F cos थीटा और इधर लगेगा F sin थीटा. और ये समझो 10 kg है, या मास इज m. तो एक्सेलरेशन अलोंग द सरफेस, लेट्स नेम इट एज x एक्सिस and this as y axis. So acceleration along x is force along x upon mass. तो ये जो एक एक डायरेक्शन में अलग से अप्लाई करते हैं, जो पहले मैंने ऐसे इन जनरल A = F/m लिख दिया. यहाँ पे assumption माना है मैंने कि एक्सेलरेशन एंड फोर्स आर इन सेम डायरेक्शन. अगर नहीं है तो मुझे एक एक डायरेक्शन में अप्लाई करना है. हम बोलते हैं ऐसे along x axis. एक डायरेक्शन पकड़ी मैंने x axis, उसके along Fx, x component of force, net force is mass into acceleration in x direction. Along y axis भी लगाते हैं हम लोग, Fy = m × ay. z axis के along में लगाते हैं, किसी भी डायरेक्शन के along लगा सकते हैं. तो आपको उस डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट देखना पड़ता है. इनफैक्ट टू बी प्रिसाइज, नेट फोर्स का कंपोनेंट देखना पड़ता है. ठीक है, आ रही बात समझ में? हेलो सर, दोबारा एक्सप्लेन करिए. सॉरी
सर दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ ठीक, जैसे पहले हम ऐसे बोल देते थे F इक्वल्स टू में, जूनियर क्लास में मैंने 9th में भी ये टॉपिक पढ़ा था, F इक्वल्स टू में काफी क्वेश्चंस भी किए थे। तो वहां पे हम क्या करते थे, डायरेक्शन की केयर नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि एजम्पशन रहता था जिस डायरेक्शन में मोशन है ऐसा मान के चलते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, फोर्स भी इधर ही लग रहा है। अब ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, अब ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है और फोर्स इधर लग रहा है, तो अब आप स्केलर एडिशन नहीं कर सकते, सॉरी स्केलर रिलेशन नहीं लिख सकते F इक्वल्स टू एम, ये काम नहीं आएगा। F वेक्टर इक्वल्स टू एम ए वेक्टर लिखना है, ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, अगर आपको स्केलर फॉर्म में डील करना ही है तो आपको क्या करना है, चूज डायरेक्शंस। आप डायरेक्शंस चूज कर लो, ठीक। उस डायरेक्शन में रिजॉल्व फोर्स एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ मोशन, रिजॉल्व फोर्स एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ मोशन, ठीक। फिर अप्लाई F इक्वल्स टू एम ए इन इंडिविजुअल डायरेक्शंस, इन डिफरेंट डायरेक्शंस सेपरेटली, अलग अलग डायरेक्शंस में अलग से F इक्वल्स टू एम अप्लाई करो। अगर आपको वेक्टर से डील नहीं करना तो, या तो सबसे अच्छी बात है वेक्टर से डील कर लो, तो उसमें सब कुछ कवर हो जाता है, राइट। तो जैसे ये क्वेश्चन, जैसे मैं क्वेश्चन लिख के दिखाता हूँ, एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है, जैसा एक क्वेश्चन frictionless surface, there is no friction on it. This object of mass 10 kg, a force of 150 Newton acts and making 53° with surface. Right? Find the acceleration of the object. Assuming that it remains in contact with the surface. Sorry? Hello? यस सर। क्या होगा? ये क्वेश्चन दे रखा आपको, 10 kg ऑब्जेक्ट है, केप्ट ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस, 150 न्यूटन फोर्स है, 53° पर लग रहा है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा? व्हाट विल बी एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट? आ रहा है समझ में? सर 9i + 12j। 9i + 10j, पक्का? 12j सर। ओके, आपने इसको एक्स एक्सिस लिया, इसको वाई एक्सिस लिया, यस सर। ठीक। अब क्या हुआ, एक्सेलरेशन इज F/m, ये किया आपने, ठीक है, अपॉन 10 कर दिया आपने, F क्या लिया, 150 cos 53i प्लस माइनस 150 sin 53j, ठीक। ये हो गया 0.6, ये हो गया 90 minus 0.8, this is 120j upon 10. So 9i minus 12j, right? आप कहना चाह रहे हो एक्सेलरेशन 9i 12j, आपको लग रहा प्रैक्टिकली वो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा? नहीं सर। नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले से ही जानते हैं कि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होना ही नहीं है, तो किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होना है? इट हैज टू एक्सेलरेट ओनली अलोंग एक्स एक्सिस, देयर इज नो अदर वे, कोई दूसरा चारा नहीं है उसका एक्सेलरेट होने का, वो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग ही एक्सेलरेट हो सकता है। तो मैं पहले से ही, मतलब आगे चलते चलते आपको भी सब समझ में आएगा, मतलब फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखेंगे हम लोग। एक बार ये सीख गए तो आपको जवाब, आपको बताने की जरूरत, आप खुद सबसे कर लो। बट धीरे धीरे मैं सेंस डेवलप कर रहा हूँ, मुझे मालूम है कि एक्सेलरेशन सरफेस के अलोंग ही आने वाला है। तो अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग सरफेस अगर मैं लगाऊं तो सरफेस के अलोंग फोर्स कितना है, 150 cos 53°। ये कितना हो गया, ये हो गया 0.6, तो ये हो गया 90 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स कोई पूछेगा तो फोर्स अलोंग एक्स अपॉन मास,
तो 90/10, 9 मीटर पर सेकेंड। वाई के अलॉन्ग का एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, मुझे पता है, क्योंकि मैंने लिख ही दिया था, assuming that it can move only along the surface, it always moves along the surface। हमारी बात समझ में? क्यों नहीं होगा, उसके पीछे रीजन है। यहाँ से अंदर से एक दूसरा फोर्स आ रहा होगा, तो इसका ये जो कंपोनेंट है ना, आपने कुछ गलती नहीं करी, ये जो कंपोनेंट है ऊपर वहां कोई बैठा हुआ है इसको कैंसिल करने के लिए। तो वो वाला एंगल पे अभी मैं अगले स्टेप में जाऊंगा, अभी फिलहाल आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि एक फोर्स आपको दिखाया नहीं, आपका इनर सेंस क्या बोलता है, इट कैन नॉट मूव इन दिस डायरेक्शन एज देयर इज अ सरफेस। ठीक, और वैसे भी मैंने ऐड कर दिया था, assuming that it always remains in contact with surface, तो क्या होगा, तो ऐसे जाएगा। ठीक है, आ रहा समझ में? ओ माय गॉड, छत्तीसगढ़ कितना अंदर बाहर जा रहा है। ओके, रब करूं, क्षितिज आया समझ में? डिस्कनेक्ट हो गया था फिर से। यस सर, अलोंग सरफेस से एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक, मुझे पहले से ही पता है कि ऑब्जेक्ट सरफेस के अलोंग ही चलने वाला है। एक तो क्वेश्चन में भी मैंने मेंशन कर दिया था, और वैसे मुझे दिख रहा है कि ये नीचे सरफेस है तो इधर उधर तो नहीं जाएगा, जो चलेगा वो इधर ही चलेगा। तो मैं शांत दिमाग से F = ma along the surface